Hello, my dear children, class 7th. Today it's turn of Unit 2, Section 1, Wanderlust. As we have done this chapter in like online class as well, but still here you are supposed to listen to this video very carefully because a few students were not able to attend online class. So these are the recordings for those also, and those who have attended, it will be the revision for them. So this is wanderlust. First of all, let us know the meaning of wanderlust here. Wander का meaning होता है travel, घूमना. Lust होती है strong desire. So here wanderlust means a strong desire to travel. Here, in front of you, here in this slide, you can see the starter. Here a few questions are given. Introductory questions are given, like why do people travel to hitherto? Hitherto means it's so far. दूर अनएक्सप्लोर्ड मीन्स नॉट इन्वेस्टिगेटेड. तो लोग क्यों पसंद करते हैं ट्रैवल करना, क्यों करते हैं ट्रैवल इतना दूर नॉट इन्वेस्टिगेटेड एरियाज में. एंड इफ़ दे डू सो देन व्हाट आर द डेंजर्स दैट दे कुड पॉसिबली फेस एंड व्हाट प्रेपरेशंस कुड वन रिक्वायर. कि जो प्रेपरेशंस हैं क्या चाहिए होती हैं ट्रैवलिंग के लिए. आपको आपके पास मनी होनी ज़रूरी है ना, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, टिकट्स, वीज़ाज, प्लेस टू स्टे एंड एवरीथिंग, राइट. सो व्हाट आई वांट टू नो, you can write your own experience over here, and what you have learned after listening to this chapter's explanation, then you may write here what I learned. So before beginning the explanation of this chapter, let me tell you that this is Section 1, the quest for El Dorado. Quest means search. El Dorado is a place of fabulous wealth, that is golden land. And the legend of El Dorado is popular folklore, and even we will be reading in this chapter that explorations. So the lust for gold spans all eras, races and nationalities. To possess any amount of gold seems to ignite, that insatiable desire to obtain more. कि जितना मिला उससे भी ज़्यादा मिलता जाए, वो और desire पैदा करता है ना gold कि जितना मिला. तो through the centuries, this passion gave rise to the, that enduring tale of a city of gold. इस इच्छा से ही लोगों ने एक्सप्लोरेशन करने की सोची, एक्सप्लोर करने का सोचा उस लैंड को, दैट एल डोरेडो को. तो इन द 16th and 17th centuries, Europeans believed that somewhere in the new world there was a place of immense wealth known as El Dorado. So their searches for this treasure wasted countless lives. बहुत लोगों की जानें चली गई. ड्रो एटलीस्ट वन मैन टू सुसाइड. एक ने तो सुसाइड भी कर लिया. मीन्स वो रास्ता इतना मुश्किल था एल डोरेडो तक पहुंचने का, बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी. तो व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज they had faced. So this is what I am talking about. And some तो they just gave up that एक्सपीडिशन समझते हो, दैट इज़ जर्नी. तो जर्नी किसके लिए करनी शुरू करी थी उन्होंने? एल डोरेडो के लिए, गोल्ड को सर्च करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल. लेट अस रीड दिस चैप्टर. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन दैट आई गिव यू. सो it was the promise of wealth beyond measure that lured the explorers. अब explorers होते हैं search करने वाले. Lured होता है attract, anything that attracts. It was a promise of wealth. Just because of wealth they have decided to search the place. They traveled to seek out, सर्च करने के लिए एल डोरेडो को उन्होंने ट्रैवल किया. द मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड थी, जो कि इमेजिन्ड सिटी ऑफ गोल्ड थी, दैट वाज सुपोज्डली लोकेटेड इन द अनएक्सप्लोर्ड इंटीरियर ऑफ साउथ अमेरिका. कहाँ पे लोकेटेड थी? साउथ अमेरिका में, अनएक्सप्लोर्ड इंटीरियर ऑफ साउथ अमेरिका. सो एल डोरेडो ये विश्वास किया जाता था टू बी अनइमेजिनेबली रिच विद डैजलिंग, विद शाइनिंग गोल्ड पेव्ड स्ट्रीट्स. कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो क्या है? गोल्ड से कवर्ड हैं, गोल्डन टेम्पल्स हैं, एंड रिच माइंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. एंड देयर वर इमेजिनेटिव टेल्स, फैंसीफुल टेल्स, बहुत सारी इमेजिनेटिव टेल्स हैं अबाउट अ माइटी सिटी. माइटी सिटी मीन्स पावरफुल सिटी, वेयर रूम्स ऑफ गोल्ड ले अबाउट इन हीप्स. कि जहाँ पे
जो गोल्ड के रूम्स हैं वो भरे पड़े हैं, ढेरों के ढेर वहाँ पे गोल्ड है, एज इफ देवर लॉग्स ऑफ वुड मार्क्ड आउट टू बर्न, कि जिस तरह की जो वुड हैं, जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं गांठ में बांध करके, इस तरह से ढेरों के ढेर जैसे लकड़ियाँ पड़ी होती हैं वैसे ही वहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ था. So between 1530 and 1650 AD, thousands of Europeans searched the jungles, plains, mountains and rivers of South America for El Dorado. 1530 and 1650 AD. AD means Anno Domini. I told you in online class as well that 1857 AD, AD after birth of Christ. कौन सा समय होता है जो जीसस क्राइस्ट के बॉर्न के बाद वाला जो समय होता है. And BC, this is before the birth of Christ. Here you can see this number line as well. I have marked here birth of Jesus. जो इसके लेफ्ट वाला है वो बैक जो है बिफोर क्राइस्ट है, एंड जो राइट साइड वाला है वो एनो डोमिनी है. सो बिटवीन 1530 एंड 1650 AD, thousands of Europeans searched the jungles, plains, माउंटेन्स, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका फॉर एल डोराडो के लिए उन्होंने सर्च करी. और जो एक्सपीडिशन थी, जर्नी थी, वुड बिगिन टिपिकली इन अ टाउन ऑन द स्पेनिश कोस्ट. से वो जर्नी स्टार्ट होनी थी. कोस्ट का मीनिंग होता है द पार्ट ऑफ द लैंड नियर सी. तो एक अट्रैक्टिव और पावरफुल इंडिविजुअल जो था वो अनाउंस करता, अब उसने अनाउंस करना था, उसने अनाउंस करी इंटेंशन टू गो फोर्थ, आगे बढ़ने के लिए, कि किसकी इच्छा है वो आगे आए. किसके लिए? कि जो एल डोराडो, जो फेबल्ड वेल्थ है, फेमस वेल्थ को जो क्या करना चाहता है, ढूंढना चाहता है, जो वहाँ जाकर के गोल्ड जो ढूंढने का इच्छुक है वो सामने आए. तो एक अनाउंसमेंट होती है. तो एनीवेयर फिर क्या होता है कि एनीवेयर फ्रॉम 100 to 700 यूरोपियंस जो होते हैं, मोस्टली स्पेनियार्ड्स होते हैं, जो नेटिव्स ऑफ स्पेन होते हैं, वुड साइन अप, वो एंटर करते हैं, एंड ब्रिंगिंग देयर ओन आर्मर. अब उन्होंने अनइन्वेस्टिगेटेड, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे जाना है तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना. आर्मर, शील्ड लेके जाएंगे अपने साथ, आर्मामेंट्स, वेपन्स, हथियार लेके जाएंगे, हॉर्सेस को साथ लेके जाएंगे. तो एट टाइम्स दे वुड टेक लाइव स्टॉक अपने साथ, फार्म एनिमल्स को लेके जाएंगे टू किल, उनको मार करके खाएंगे भी ना वहाँ पे, एंड ईट अलॉन्ग द वे. तो फाइटिंग डॉग्स को साथ लेकर के जाएंगे, ब्रॉट अलॉन्ग एज दे वर यूजफुल दे व्हेन फाइटिंग द इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट. अब वो डॉग्स को क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है उनको, फाइटिंग डॉग्स वर ऑलवेज, हमेशा लेकर के जाया जाता है डॉग्स को. क्यों? क्योंकि वो यूज़फुल होते हैं. कि अगर डोमेस्टिक पॉपुलेशन के साथ, कि जहाँ वो जाएंगे उन नेटिव्स के साथ अगर फाइटिंग हो जाती है ऑफ द मेन लैंड, तो साथ में एटलीस्ट वो हेल्पफुल होंगे फाइटिंग डॉग्स. तो एक बार क्या होता है, साउथ अमेरिकन सॉइल, ऑन साउथ अमेरिकन सॉइल एक्सपीडिशन वुड हेड ऑफ इनटू द जंगल. तो जर्नी जो है वो इट्स टर्न बैक इनटू द जंगल एंड वुड लास्ट एनी लेंथ ऑफ, शुरू की गई जर्नी फॉर एल डोराडो. तो कहते हैं कि एक एनी लेंथ ऑफ टाइम, कि मतलब किसी भी समय वो एंड हो सकती थी, कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम नहीं था. फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू अ फ्यू ईयर्स, कुछ मंथ से लेकर के कुछ सालों तक जा सकती थी वो सर्च. सो ऑन द वे दीज एक्सप्लोरर्स वुड मीट नेटिव इनहैबिटेंट्स. ऑब्वियस ही बात है कि रास्ते में वो जो जिस रास्ते से जाएंगे वहाँ के सिटीजन्स को तो वो मिलेंगे, हु वुड बी ईदर टॉर्चर्ड और plied with gifts in the pursuit of information. So what does it mean plied with? It's a loaded with. तो हो सकता है, कहते हैं कि उनको वो रास्ते में टॉर्चर भी हो सकते थे. हु वुड बी ईदर टॉर्चर्ड, या तो उनको टॉर्चर किया जा सकता था, और या वो उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती थी. इट डिपेंड्स कि जो उनको नेटिव्स मिलते हैं वो किस तरह के मिलते हैं. तो द नेटिव्स वुड पॉइंट इन एनी डायरेक्शन. अब क्या होता था बेटा, ये एक्सपीरियंस बताया गया है कि क्या क्या होता था. उनको टॉर्चर भी किया जाता था, और कुछ जो नेटिव्स थे वो काफ़ी अच्छे भी थे और वो इन्फॉर्मेशन भी देते थे. लेकिन कहते हैं कि जो नेटिव्स थे वो कुछ नेटिव्स क्या करते थे, वो उनको किसी भी डायरेक्शन में भेज देते होते थे. किसको? जो एक्सप्लोरर्स, जो एक्सपीडिशन जर्नी करने वाले थे, तो उनको किसी भी डायरेक्शन में वो भेज देते होते थे. क्यों? वट वॉज द रीज़न? Having learned that it was the best way to get rid of these rude and violent men. और उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा वे है उनसे छुटकारा पाने का. उनको लगता था कि वो वायलेंट मैन हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ऑफ, उनसे छुटकारा पाने के लिए रूड और वायलेंट मैन से ये अच्छा तरीका था. वो सोचते थे कि क्या करें, इनको गलत डायरेक्शन ही बता दें.
क्योंकि उनको रास्ता पता नहीं था, तो जब वो वहाँ के लोगों से पूछते थे वो उनको गलत गाइड कर देते होते थे। तो मीनवाइल इतने में कहते हैं कि इलनेसेस, अब रास्ता इतना लंबा था तय करना, तो कुछ बीमार पड़ गए। इलनेसेस, डेजर्शन, अटैक्स वुड विटल डाउन द एक्सपीडिशन। विटल डाउन मीन्स कि लोगों की गिनती कम हो गई, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल ऑफ एक्सपीडिशन, जो जर्नी करने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद भी, नेवरथलेस मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी द एक्सपीडिशंस प्रूव्ड सरप्राइजिंगली रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मीन्स टफ। एक्सपीडिशंस क्या थी? टफ थी। ब्रेविंग मॉस्किटो इन्फेस्टेड स्वैम्प्स, दलदल को बियर करना पड़ा। अब कैसा दलदल था? जिसमें मॉस्किटोज थे, है ना, मॉस्किटो इन्फेस्टेड, भरा हुआ मॉस्किटो से वो दलदल जो बॉग था वो देखना पड़ा उनको, रास्ते में वहाँ से गुजरना पड़ा। एंग्री नेटिव्स से उनको फेस करना पड़ा। ब्लेजिंग हीट, रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ब्लेजिंग मीन्स बर्निंग हीट ऑन द प्लेन्स। फ्लडेड रिवर्स मिली, डेंजरस माउंटेन पासेस, डेंजरस माउंटेन वेज मिले उनको। तो इवेंचुअली व्हेन देयर नंबर्स ड्विंडल्ड, जब उनके नंबर्स कम हो गए या फिर जो लीडर था वो मर गया, द एक्सपीडिशन वुड गिव अप एंड रिटर्न होम। एक्सपीडिशन छोड़ दी गई और वो घर वापस आ गए।